हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपके लिए क्लास 10th के वीडियो में कुछ आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के चुनिंदा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर वहाँ आपके सामने है। OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OB जो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ऑफ द लाइन सेगमेंट DE एंड FA ये है आपके पास, दैट इज परपेंडिकुलर टू OB। FE जो इंटरसेक्ट कर रहा है OB को पॉइंट C पर, यू हैव टू प्रूव 1 by OA plus 1 by OB equal to 2 by OC. Okay, so just giving you solution. Given, okay, OB is perpendicular and bisector of line segment DE. Line segment DE. Also FA perpendicular, FA जो है वह perpendicular OB है, and FE intersects okay OB at a point C, and to prove one by OA plus 1 by OB is equal to 2 by OC. First of all, students, as you know, FA and DB perpendicular to OB, and before this देखिए OB perpendicular as well as bisector, that means DB equal to BE. Okay, prove OB is perpendicular and bisector of DE given, that's why DB is equal to BE. Okay, and angle DB, okay, O equal to 90 degree. Also FA perpendicular, okay, OB FA perpendicular OB, that's why क्या हो जाएगा, एंगल FAO, एंगल FAO दिस इज ऑल्सो 90। अब यहाँ है कि OAF और OBD, इसमें एंगल O कॉमन and angle OAF OBD 90 two angles are equal, so they are similar by a similarity. In triangle OAF and triangle OBD, angle O equal to angle O common, and another angle OAF is equal to angle OBD, okay, 90 degree. So triangle OAF similar triangle OBD by a similarity. Okay, from this क्या हो जाएगा, OA by OB, OA upon OB is equal to FA upon DB, but BD equal BE, so we can write this OA by OB equal to FA by BE. It is equation first. Now in triangle FAC, okay,
in triangle FAC and EBC, एंगल EBC क्या होगा, FAC 90, ओके, इज इक्वल टू EBC also 90, एंगल EBC ओके 90 डिग्री. Another FCA और एंगल ACF इक्वल टू एंगल BCE, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ट्रायंगल FAC सिमिलर ट्रायंगल EBC बाय विच क्राइटेरिया, AA सिमिलरिटी से. और इसे निकल कर के आएगा FA बाय BE इज इक्वल टू AC बाय BC, ओके, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल से. अब देखिए यहाँ FA बाय BE, FA बाय BE, so one side common, another side also equal. Okay, so from equation first and second, क्या मिला, OA by OB, AC is equal to AC by BC, OA by OB equal to AC by BC, okay. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, OA इंटू BC इक्वल टू AC इंटू OB. अब हमारे पास जो प्रूव करना है उसमें O से स्टार्ट करना, OA OB OC. दैट मीन्स कि O आप एज यूजुअल रखो, BC को देखिए O के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. BC मीन्स OB माइनस OC, तो मैं यहाँ BC को OB माइनस OC और AC को भी OC माइनस OA, ओके, OC माइनस OA इंटू OB. जस्ट अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन जो है क्लियर करते हैं. तो क्या आएगा, OA इंटू OB, OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC इज इक्वल टू OB इंटू OC, ओके, माइनस OA इंटू OB. अब ये OA इंटू OB जो है लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो OA इंटू OB प्लस अगेन OA इंटू OB इज इक्वल टू OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC. यहाँ से दो बार OA OB है 2 OA OB और ये आ जाएगा OB इंटू OB प्लस OB इंटू OC दे दो, OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC, ओके. OA OB OC से डिवाइड कर दो, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय OA OB OC, ओके. OA OB OC, OA OB OC, this also divided by OA OB, so OA OA cancel, OC OC cancel, OB and OC cancel, here OA OB and left 2 by OC is equal to 1 by OA plus 1 by OB, hence you can write 1 by OA plus 1 by OB is equal to 2 by OC, okay, hence proved. So students, just you have seen, on the basis of similarity criteria this question has been solved. So students, अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, prove that the ratio of areas of two similar triangles equal to the ratio of the square of their corresponding altitude.
फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा टू सिमिलर ट्रायंगल्स विथ सेम शेप। ओके, ABC and DEF, these are two similar triangles. You know students, ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of a square of their corresponding sides. So here given क्या है, given है ABC and DEF are two similar triangles. Okay, and altitude, this AM DN. Okay, altitude AM is perpendicular to BC, so AM altitude, DN perpendicular to EF, so DN also altitude. And to prove area of triangle ABC upon area of triangle DEF, altitude AM square by altitude DN, corresponding altitude square. As we know students कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरियाज के रेशियो, वी नो दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू the ratio of squares of their corresponding sides. Students, as you know ABC triangle and DEF are similar. दिया ही है कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, दैट्स वाई ये गिवन है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF, यह हो जाएगा AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, इसको अल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिमिलर ट्रायंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E। अब ABM और DEN में जाएंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN क्या होगा, एंगल B और एंगल E इक्वल, एंगल B इक्वल एंगल E, अनदर हो जाएगा AMB इक्वल DNC 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABM DEN सिमिलर, ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DEN बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलरिटी, और इससे क्या आएगा, AB बाई DE यह इक्वल आएगा AM बाई DN। जहां से स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर बाय DN स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखिए
one side AB square by DA square, AB square by DA square. So from first and second equation, first and second जो हमें प्रूव करना था कि ABC और DF का एरिया का रेशियो M और DN के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है, सो प्रूव हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके, इज इक्वल टू अल्टीट्यूड AM स्क्वायर बाय अल्टीट्यूड DN स्क्वायर, ओके। So this question has been proved. Now you see question number 3 क्या कहता है? Prove that ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding medians. Question सेम ही है, सिर्फ यहाँ बदल दिया है, अल्टीट्यूड के बदले मीडियन दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो सिमिलर ट्रायंगल्स ले लिया, ये रहा सिमिलर ट्रायंगल्स, बट ये मीडियन है, ओके। डी एंड मीडियन हो गया DEF का, एंड AM ये मीडियन हो गया ABC के, ओके। सो गिवन में लिखते हैं, गिवन ABC is a triangle, AM and DN are medians. Medians कहाँ मिलते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ओके। तो MBC का मिड पॉइंट हो गया, M and N are मिड पॉइंट्स किसका? ऑफ BC and EF. What you have to prove? Okay, ABC is a triangle, not ABC only, ABC and DEF, and DEF are similar triangles, okay. And you just have to prove area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to ratio of square of their corresponding median. As you know students, कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके रेशियो, एरिया के रेशियो जो है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। सो प्रूफ में पहले क्या लेना पड़ेगा? प्रूफ, वी नो दैट ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of a square of their corresponding sides, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Here triangle ABC similar to triangle DEF just given, that's why area of triangle ABC by area of triangle DEF ये हो जाएगा AB square by DE square. This is equation first. Now in triangle ABM and DEN, now in triangle ABM and triangle DEN क्या क्या इक्वल मिलेगा? एंगल B और एंगल E इक्वल, एंगल B इक्वल एंगल E। व्हाट? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ABC और DEF के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे।
ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF से corresponding angles of similar triangles and another क्या हो जाएगा AB by DE. ओके, AB by DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BM by EN. BM by EN ये कहाँ से होगा देखिए, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर DEF, दैट्स वाई क्या हो जाएगा AB by DE इज इक्वल टू BC by EF. ओके, सो हाफ BC हाफ EF इज इक्वल टू, देखिए हाफ BC का BM आप लिख सकते हो और हाफ EF का EL लिख सकते हो, BM by EL. और इस तरह से ट्रायंगल ABM और DEN सिमिलर हो गया. ट्रायंगल ABM सिमिलर DEN और ये क्राइटेरिया हुआ SAS सिमिलरिटी से. और यहां से निकल करके आते हैं AB by DE लिखते हैं इज इक्वल टू मीडियन AM by DN. सो यहाँ स्क्वायर ऑफ AB एंड DE रेशियो स्क्वायर ऑफ AM DN रेशियो इक्वल हो गया. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर को हम लीव करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ये आ गया AM मीडियन और DN मीडियन होल स्क्वायर के इक्वल, और यही प्रूव्ड करना था. तो स्टूडेंट्स आप जो ये देख रहे हो दोनों, ये आपको यूज आएगा जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स बनाओगे. तो दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड एज थ्योरम इन RS Agarwal or RD Sharma, and which will be helpful to solve the exercise problems. Students, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं. They have proved that the ratio of areas of similar triangles, okay, two similar triangles, and equal to the ratio of the squares of their corresponding bisector segment. Okay, corresponding angle bisector segment. First of all, two triangles which are in the same shape, which are similar, ABC, DEF, which have angle bisector AM, and for DN, this angle 1, 2. First of all, given ABC and DEF are two similar triangles. AM and DN are angle bisectors, segment of angle A and angle D. To prove, okay, area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to a square of angle bisector segment of one triangle and to that of the square of, okay, angle bisector of the another triangle. Prove.
Students, as you know कि if two triangles are similar, the ratio of the areas of the two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides. So first of all ये मेंटेन करेंगे, ये लिखेंगे, we know that if two triangles are similar, then okay, ratio of areas of these two triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. As triangle ABC similar triangle DEF, so area of triangle ABC by area of triangle DEF ये इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर बाय DA स्क्वायर इक्वेशन हुआ। अब स्टूडेंट्स एंगल A इक्वल टू एंगल B। नाउ एंगल A जो है वह इक्वल एंगल D है। क्यों? ट्रायंगल ओके, इसको इस तरह से आप लिखो कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D, तो हाफ ऑफ एंगल A इक्वल टू हाफ एंगल D। हाफ एंगल A को 1 और हाफ एंगल D को 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा कि आपके पास में जब 1 और 2 इक्वल हो गया और एंगल B और एंगल E जो है ऑल्सो एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो हम इस ट्रायंगल में आएंगे। ओके, ABM और DN इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, जहां से क्या मिलेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिलेगा और एंगल B इक्वल टू एंगल E मिलेगा। ये तो प्रूव्ड है। ओके, और ये आपका गिवन है, दिस इज गिवन। ट्रायंगल ABM इज सिमिलर ट्रायंगल DEN। क्राइटेरिया AA का यूज किया, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और यहां से क्या मिला, AB बाई DE मिला AM बाई DN, therefore AB by DE equal to AM by DN। ओके, corresponding sides of similar triangle are proportional। और फिर इसको स्क्वायर कर दिया, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर बाई DN स्क्वायर, ये 2 हो गया। आप देखिए यहां से AB स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जो है दोनों इक्वेशन में है, तो ये पार्ट यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड राइट पार्ट ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वल हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to AM square by DN square by DN square। आप लिख दीजिए यहाँ हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि इसमें जो है सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो, एरियाज के रेशियो जो है कभी जो है एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के रेशियो के इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो कभी अल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं, तो कभी मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं। और इसी का यूज करके देखिए आपको कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम बनाने हैं
इसमें ये एक क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, जस्ट यू सी फिगर इस तरह से है, ओके, ABC और DE यहाँ है, D और E आप इसको ज्वाइन कर लो, और दिया है क्या, AD ये 5 और ये 4, तो इसको आप 5x मान सकते हो 4x, क्योंकि रेशियो में दिया है। अब आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ CFB, ओके, CFB, ओके, एरिया ऑफ DFE, DF यहाँ है, और एरिया ऑफ CFB। तो इसके आपको जो है रेशियो जो है वह दिखाने हैं कि क्या होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से पहले तो आप देखिए कि अगर D पैरेलल BC है, गिवन में क्या है, गिवन है D पैरेलल BC इन ट्रायंगल ABC, पहले ढूंढिए कि D पैरेलल है BC, तो यहां से आप इसको एंगल 1 मान लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल B मान लो, B मान लो नहीं बल्कि है ही, और एंगल 2 जो है वो एंगल C के इक्वल हो गया है, ओके। ये कैसा, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से अब क्या करना है कि ADE और ABC इसको सिमिलर दिखाना, तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा, हमारे पास में जो है एंगल जो है A इक्वल टू एंगल A कॉमन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, ओके। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ABC बाय AA, सिमिलरिटी बाय AA, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके। अब देखिए यहां से क्या होगा कि AD बाय AB, AD बाय, देखिए AD बाय AB इक्वल हो जाएगा D बाय BC। पहले D बाय BC का रेशियो निकाल लिया, तो AD कितना है, तो लेट, अब देखिए AD और AB का रेशियो दिया है, AD रेशियो AB, ओके, D भी दिया है, तो आप मान लो कि लेट AD इक्वल टू 5x and DB equal to 4x, ओके, एज AD रेशियो DB जो है यह क्या है, 5:4 है, और यहां से AB आ जाएगा कितना, AB इक्वल टू 5x प्लस 4x जो 9x होगा। अब ये यहां से आप AD 5x बाय 9x इक्वल टू D बाय BC, तो यहां से DE रेशियो BC आ जाएगा, ओके, 5:9, तो लेट DE को आप मान लो 5x, ओके, एंड BC को मान लो 9x। अब इस ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, किसको, DFE, जैसे यहां किया है DFE और CFB को, तो यहां से देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और ये वर्टिकली से इक्वल हो गया, देखिए इन ट्रायंगल DFE एंड ट्रायंगल CFB, ओके, DFE और CFB क्या क्या है इक्वल, एंगल DFE इक्वल टू एंगल CFB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल EDF इज इक्वल टू EDF, और एंगल BCF ये क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एज कौन सा पैरेलल हो गया, D पैरेलल BC, और यहां से हमको क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल DFE सिमिलर ट्रायंगल CFB
बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी। और तब क्या होगा, जो रेशियो है माने DE बाय BC, ओके, DE बाय BC, सॉरी, क्या हमने जाना यहाँ तो एरिया का रेशियो निकालना है। वी नो दैट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB, ये उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यानी DE का स्क्वायर बाय D के कोरस्पोंडिंग CB है तो CB के स्क्वायर के। अब देखिए DE कितना हो गया, DE बाय, इसको लिख सकते हैं हम DE बाय CB होल स्क्वायर। हमारे पास में ऑलरेडी DE 5x और CB 9x, तो ये हो गया 5x अपॉन 9x, ओके, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 5 जा 25 रेशियो 81। इसका रीजन आप लिख दीजिए, रीजन लिखना है तो रीजन क्या कि टू सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of square of corresponding sides, ratio of square of corresponding sides, ये मैंने रीजन दे दिया। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर तो यही हो गया। एंड जस्ट यू हैव सीन कि यह प्रॉब्लम जो है वह related to the ratio of areas of two similar triangles to that of the ratio of the areas of the corresponding sides पर है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस जो है वह मैं आपके लिए डालता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ये आपके जो है एक अच्छे और इस्तेमाल की चीज़ होगी, जो आप इसको यूज करके प्रैक्टिस करके और मैथ्स को आप मजबूत कर सकते हैं। आशा करता हूं आप वीडियो को देख करके लाभान्वित हो और जो भी कमियां हैं आपके जो है मतलब उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।